गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड किए थे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम इनका अगेन रिवीजन करेंगे। आप इसको लिखेंगे आपकी रफ कॉपी में और आप इसको रिवाइज करेंगे एंड लर्न भी करेंगे। ओके, सो सी हियर, what are parts of speech? What are 8 parts of speech? Parts of speech are very important parts of English grammar. For ESL students, learning parts of speech is must things to do. I will help you to building up the initial concept and it is the building block of English grammar. आपको पता है कि हमारी जब भी हम इंग्लिश की ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारी इंग्लिश ग्रामर का, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। और उससे पहले सेंटेंस होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगेन रिवीजन करेंगे बिकॉज जो मैं डेफिनेशन आपको आज दे रही हूँ वो आपको अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखना है एंड उनको लर्न करना है। ओके, सो सी हियर आर द क्विक लिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, adjective, adverb, conjunction, verb, interjection and preposition. Okay, these are our 8 parts of speech. Now we will study parts of speech with example. अब हम इनको example से देखेंगे। सबसे first definition is noun. It is the name of certain place, thing or a person like Daniel, English और a loin etc. ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि noun is a name of any person, place, animal or thing. ठीक है, then there are further 2 major types of noun, that is common noun and proper noun. noun के 2 major types होते हैं. First one that is common noun and second one is proper noun. Okay. So, common noun, the name of a common person, the name of a common place, non-specific person or a thing, it's known as common noun like chair, book, city, etc. So, the name of a common place or non-specific person or a thing is known as common noun like chair, book, city, etc. Okay. Now, proper noun, what is proper noun? Proper noun, the name of a special person. Proper noun, name of a special person, place or a thing is known as proper noun. ठीक है, किसी स्पेशल और नोन थिंग और अ पर्सन का जो भी नाम होता है वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। ओके, सो दिस आर द मेजर टाइप ऑफ नाउन विच आर द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, so this you will write in your fair copy, otherwise in rough copy you will write and revise it. Come to the second definition. अब हम दूसरी definition पढ़ते हैं, that is pronoun. A word that is used at the place of a noun is known as pronoun. ऐसा word जो noun के स्थान पर यूज़ होता है, यानी noun की जगह पे यूज़ होता है, that is called pronoun. आपको बहुत अच्छे से पता है noun is a word which used in place of noun. noun एक ऐसा word है जो किस पे कहाँ यूज़ होता है? नाउन की जगह पे. ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है सच एज ही, शी एंड इट एसेट्रा. ओके, सो हियर आर द एग्जाम्पल्स लिस्ट ऑफ प्रोनाउन. हियर इज द एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, दैट इज whom, our, whose, everything, you, whichever, your, he, where, nobody, whomso, this, these, somewhat, whatever. ठीक है, these are the ourself. Okay. Now verb. Verb means kriya. A verb expresses the action of being, doing or having. Verb क्या है? एक क्रिया है जो किसी काम का करना या होना बताती है, यानी कि विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन कि कोई काम चल रहा है या हो रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. अ वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ बीइंग, डूइंग और हैविंग. ठीक है, सो
There is a main verb in a sentence and sometimes one and more helping verbs such as he can sing. Here sing is the main verb. Here sing is the main verb and can be helping verb. अब can be क्या लग गई यहाँ पर? helping verb लग गई. तो ये मैं जब आपको tense और clear करूँगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. तो अभी आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि verb की definition क्या होती है. So a verb expresses the action of being or doing, or having. That is verb. Okay. Now adjective. Adjective means विशेषण. A word which qualifies or modifies a noun or a pronoun is known as an adjective such as sweet, pretty, hot, etc. So adjective क्या होती है? Adjective की definition क्या write करेंगे आप? A word which qualifies or modify. Qualifies की जगह पे आप लिख सकते हैं describe. A word which describe or modifies a noun or a pronoun is known as adjective such as sweet, pretty, hot and etc. Okay, etc. और भी. So ये हमारी क्या है? विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन है. So you will write it. Now adverb. Adverb. It describes or modifies a verb, an adjective or another adverb, but never a noun such as gently, quickly, etc. मतलब एडवर्ब क्या होती है? डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई वर्ब. ये क्रिया को और डिस्क्राइब करती है और मॉडिफाई करती है. एन एडजेक्टिव और विशेषण को भी डिस्क्राइब करती है. एंड अनदर एडवर्ब और एक नई एडवर्ब फॉर्म करती है. दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. जैसे कि एक एग्जाम्पल्स हमने बोर्ड पे समझा था लाइव क्लास में. ही रन्स. अब रन्स इसमें क्या है? वर्ब है. अगर आप इसके आगे ही रन फास्ट, अगर आप फास्ट ऐड कर देंगे तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगी कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है. और अगर आप इसमें वेरी का यूज़ कर देंगे, ही रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी इसमें एडवर्ब को शो करेगी. तो ये एक एडवर्ब का सेंटेंस हो जाएगा. अंडरस्टूड? मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें. सिर्फ आज आप ये वीडियो में से आप सिर्फ रिवाइज़ करेंगे सारी डेफिनेशंस को और अपनी रफ़ कॉपी ऑफ इवन फेयर कॉपी में मैं तो राइट करा चुकी हूँ, रफ़ कॉपी में आप राइट करेंगे. ओके. आफ्टर एडवर्ब कम टू प्रपोजिशन. प्रपोजिशन. A preposition is a word placed before a noun or pronoun. कहाँ पर यूज़ होती है प्रपोजिशन? नाउन और प्रोनाउन के पहले हम प्रपोजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence such as. कौन कौन से होते हैं प्रपोजिशन वर्ड्स? by, with, on, है ना, under, side और भी बहुत सारे. तो प्रपोजिशन की ये डेफिनेशन है. नाउ नेक्स्ट वन. द एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन यू विल क्लियर इट मोर. द बुक इज़ ऑन द टेबल. हियर ऑन इज प्रपोजिशन. ऑन कहाँ है? क्या है यहाँ पर? प्रपोजिशन वर्ड है. यहाँ पर ही रॉट अ लेटर विद द ब्लू पेन. यहाँ पर बताइए प्रपोजिशन वर्ड क्या है यहाँ पर? विथ. ओके. सो नाउ कंजक्शन. Conjunction joins words, clauses or phrases and indicates the relationship between them such as what, or, so, yet are conjunctions. Conjunctions क्या करते हैं? कोई भी दो words, clauses, phrases and indicates the relationship between दो सेंटेंस के बीच के रिलेशन, मतलब सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम जो करते हैं वो कंजक्शन वर्ड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. सो कंजक्शन ज्वाइन द वर्ड्स, क्लॉजेज और फ्रेजेस एंड इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. और एग्जाम्पल बट, और, सो, येट, बिकॉज. दीज आर कंजक्शन वर्ड्स. ओके. नाउ our last definition is that is interjection. I already explained you what is interjection. Interjection are the words used to express emotions, जो हमारी emotions को बताते हैं, emotions को express करते हैं. That is called interjection words such as oh, wow,
है ना। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। सो यू विल राइट द डेफिनेशन। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस सच एज ओ, वाओ, etc. Okay, so these are our interjection words. So these all 8 definition you will write and you will learn it. Okay, so आज का आपका होमवर्क है, आपको ये सारी डेफिनेशंस रिवाइज करनी है और इनको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।